welcome back once again in Neo Pakistan. اور اب بات کریں گے کچھ معیشت کے حوالے سے. ہمیں ماہر معیشت ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے جوائن کیا, ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آج پھر IMF جو ہے پاکستان حکام کا اجلاس ہو رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھی خبر کی امید ہے؟ بہت زیادہ یہ معاملہ ڈیلے ہو چکا ہے. دیکھیے IMF اور پاکستان کے درمیان میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اقدامات ہیں جو ہمیں IMF کہتا ہے کہ آپ نے یہ قدم اٹھانے ہیں, اور دوسرا ہے اعتبار یا اعتماد کا ایک رشتہ IMF اور ہماری منسٹری کے درمیان. تو اقدامات کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ روپی اور ڈالر کا جو ریٹ تھا اس کے حوالے سے ہم نے سارے اقدامات اٹھا لیے ہیں. پھر 170 ارب کے ٹیکسز اضافی لگنے تھے, پھر بجلی کا ریٹ اور پھر گیس کا ریٹ, یہ تقریباً سب چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہو گئی, ہم نے کر ڈالی ہیں اور وہ IMF نے شاید ایکسیپٹ بھی کر لی. ایک معاملہ بچا تھا جس کو ہم کہتے ہیں فائنینسنگ گیپ کا, یعنی کہ جو قرضہ جات کی حکومت پاکستان کو ضرورت ہے اور کتنی بقیہ رہ گئی ہے وہ ضرورت پر کرنا. اس میں 3 ممالک تھے, اس میں چین کے کچھ قرضہ جات تھے, سعودی عربیہ سے کوئی اضافی قرضہ جات آنے تھے, اور UAE کی کوئی اضافی قرضہ جات یا انویسٹمنٹ کی اسکیم تھی. تو چائنا والا معاملہ پر ہوتا نظر آ رہا ہے. سعودی عربیہ نے $2 ارب کی گارنٹی دے دی ہے. وہاں پہ جو معاملہ رہ گیا ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ UAE کے حوالے سے کوئی $1 بلین کا رہ گیا ہے. لیکن ان سب اقدامات کے مقابلے میں میں سمجھتا ہوں بہت ہی جس چیز کا فقدان ہے وہ اعتبار اور اعتماد کا فقدان نظر سے جائے تو آپ سوچیں پچھلے. اچھا فاروق صاحب آپ سے یہ جاننا میں چاہ رہی ہوں کہ IMF بر وقت معاہدہ کر سکتا تھا, بہت اچھے طریقے سے سب کچھ ہو سکتا تھا, مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہوا. موجودہ حکومت کس میں آپ کوئی غلطی دیکھتے ہیں یا پھر IMF ہی ہمیں کچھ سبق پڑھا رہا ہے؟ دیکھیے ہمیں کوئی بھی ہماری کنسٹرکٹی کے ہمیں زبردستی IMF کے پاس نہیں دیکھتا. ہماری اپنی معاشی پالیسیاں اور ان معاشی پالیسی میں جو غلطیاں ہیں ان کی وجہ سے ہم بھاگتے ہیں اور مجبور ہو جاتے ہیں IMF کے پاس جاتے ہیں. تو میں بات پہلے کہہ رہا تھا کہ جو اعتبار اور اعتماد کا فقدان آتا ہے IMF اور پاکستان کی حکومت کے درمیان میں, اس کا ایک بڑا میجر رول مجھے نظر آ رہا ہے. دیکھیے پچھلے کوئی 5 سالوں میں 6 تو وزرائے خزانہ ہم نے بدل ڈالے ہیں. اس کے بعد 2017 کے بعد کوئی 5 تو وزرائے اعظم بدل گئے ہیں اس ملک کے اندر. تو پالیسی کوئی ایک نہیں رہتی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ یاد کریں کہ فروری کی 28 تاریخ سن 2022 جو ہمارے سابق وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب, وہ اچانک ٹی وی پہ آتے ہیں اور سبسڈی کا اعلان کر دیتے ہیں. اب ان کی اپنی حکومت جو ہے وہ معاہدہ کر چکی تھی IMF کے ساتھ کہ اس قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا. پھر اکتوبر 2022 کو یاد کر لیں, نئے وزیر خزانہ آئے, انہوں نے ایک فیصلہ لیا کہ روپے کی جو ویلیو ہے اس کو مصنوعی طریقے سے ڈالر کے سامنے روک کے رکھا جائے گا. وہ ہم پہلے IMF سے کہہ چکے تھے, معاہدہ کر چکے تھے کہ ایسا کوئی کام نہیں کیا جائے گا. پھر مارچ 2023 میں دیکھ لیں کہ اچانک سے ہم نے وہ پیٹرول کی سبسڈی کا اعلان کر دیا کہ چھوٹی گاڑیوں کے اوپر اور موٹر سائیکلز کے اوپر. تو یہ ساری سبسڈی جو ہیں اس کی بجٹ میں جگہ نہیں بچتی ہے. تو یہ جو سیاست کی بنیاد پہ فیصلے کیے جاتے ہیں یا اعلان کیے جاتے ہیں جن کی معاشی بنیاد کوئی نہیں ہے, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتبار اور اعتماد کا جو فقدان ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب ہم دیکھیں تو IMF کا جو معاہدہ ہے یہ تمام جو دوست ممالک ہمارے موجود ہیں ان کی مدد سے مشروط کر دیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے دوست ممالک جو ہیں ہماری مدد کے لیے تیار ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ جو $6 ارب کی ادائیگیوں کے حوالے سے گارنٹیاں بھی ہمیں مل چکی ہیں. جی میں نے شروع میں بتایا تینوں ممالک کا جو رول تھا اس میں چین, سعودی عربیہ اور UAE کا رول ہے. لگ بھگ آج کے دن اور جون کی آخری تاریخ آخری دن کے درمیان کوئی $5 سے $6 بلین کا وہ گیپ نظر آ رہا تھا. اس میں سے چین نے جو رول پلے کرنا تھا, جو رول اوور آنے تھے وہ ہو گئے ہیں. چین کی کمٹمنٹ ایٹ لیسٹ جون کی آخری دن تک جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی ہے. سعودی عربیہ کا بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے IMF کو کنفرمیشن کا ای میل جو ہے $2 بلین کا وہ دے دیا ہے. جو معاملہ آؤٹ اسٹینڈنگ رہ گیا ہے وہ لگ بھگ $1 بلین کا رہ گیا ہے جو UAE کی طرف سے ہے. اور وہاں پہ بھی میرے خدشات ایسے ہیں کہ تیاری پاکستان کی طرف نہیں ہوئی ہے. UAE جو ہے وہ $1 بلین کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہے,
اور بات ہو رہی ہے پاکستان اسٹیٹ آئل کی، اس کے شیئرز کی، اور اس میں جو آپ سمجھیے کہ جو ڈفرنس نظر آ رہا ہے، جو لیزینس نظر آ رہی ہے، جو فقدان نظر آ رہا ہے، وہ پاکستان کی طرف سے۔ اچھا شاہد صاحب، یہ تمام جن باتوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شارٹ ٹرم پلاننگ کا ہی حصہ ہے؟ یہ تو ہم ابھی صرف آج کی بات کر رہے ہیں نا، اگلے مالی سال کے لیے ہم کہاں سے رقم لے کر آئیں گے؟ تب پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کیا ہم تب اس کا انتظام کر پائیں گے؟ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ اس وقت موجودہ حکومت کر رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، یہ بڑا زبردست سوال کہ آپ نے کیا ہے، اور اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ اس وقت ہماری اشرافیہ جو ہے وہ آپس میں جنگ لڑ رہی ہے۔ جن کے پاس کرسی ہے وہ اپنی کرسی تھامے رہنا چاہتے ہیں، کرسی پہ بیٹھے رہنا چاہتے ہیں، جس سے کرسی چلی گئی ہے وہ کرسی واپس چھیننا چاہتا ہے۔ اداروں کی آپس میں جنگ چل رہی ہے، سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے درمیان، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان، ساتھ ہی کچھ اداروں کے اندر بھی بٹوارا ہے، کچھ اداروں کے اندر بھی جنگ چل رہی ہے۔ تو اس وقت معیشت یا معاشی پالیسی کے حوالے سے مجھے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ خاص طور پہ جو سیاستدان شخصیات ہیں، جو فیصلہ ساز شخصیات ہیں، جو فیصلہ ساز ادارے ہیں، ان کی توجہ جو ہے وہ سیاست کے اوپر ہے۔ اور آپ یقین کیجئے اس وقت ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ سیریسلی سیاسی ہے، وہ معاشی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ پہلے بھی کی گئی تھی کہ جو موٹر سائیکل سوار ہیں ان کو کسی طرح فیول پر سبسڈی دی جائے گی، یہ کس طرح سے ہوگا؟ یہ کیسے ریکٹیفائی ہوگا یہ معاملہ؟ کس طرح سے اس کو انجام دیں گے؟ پہلے بھی یہ بات کی گئی تھی تو IMF کی جانب سے بڑا پریشر آ گیا تھا۔ دیکھیے، دنیا بھر کے ممالک جو ہیں وہ اپنی چوائس کی سبسڈی دیتے ہیں اپنے ملک کے اندر، اپنی معیشت کے اندر، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس فنڈ ہونے چاہیے بجٹ کے اندر۔ اب ایک طرف آپ IMF کے پروگرام میں ہیں، آپ کے بجٹ میں جو ہے وہ فنڈ ہے نہیں، اور پھر سیاسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سبسڈی کا اعلان کیا جاتا ہے، تو پھر وہ معاملہ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور دوبارہ سے پھر وہ اسی اعتبار اور اعتماد کا جو رشتہ ہے IMF کے ساتھ، اس کو مزید آپ سوچئے کہ نقصان پہنچتا ہے۔ تو IMF کو کوئی اعتراض نہ ہو سبسڈی دینے کے لیے اگر آپ کے پاس بجٹ میں اس کے لیے فنڈنگ اویلیبل ہے۔ اگر آپ آلریڈی جو ہے وہ 5 سے 6 ہزار ارب روپے کا بجٹ کا خسارہ کر رہے ہیں، IMF پروگرام میں واپس جانے کی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کوئی پاپولسٹ فیصلے جس کو ہم کہتے ہیں سیاسی بنیادوں کے اوپر معاشی فیصلے کر دیں، تو پھر وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم نے اقدامات جو ہیں وہ پورے کر ڈالے ہیں، لیکن وہ اعتبار اور اعتماد والا ایشو جو ہے وہ پھر بڑا کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ماہر معیشت ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے فاروق سلیم صاحب، اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ اب جناب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں نیو پاکستان کے کچن میں۔ السلام علیکم ہما، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام۔ اچھا ہما، ڈفرینٹ گروسری سٹورز آپ جاتی ہوں گی، آفس کی بھی اوبیسلی جو ہم کوکنگ کرتے ہیں، شاپنگ آپ کرتی ہیں، اپنے گھر کے لیے بھی آپ لیتی ہیں چیزیں۔ کچھ سٹورز ایسے ہیں جہاں پر بہت سیم چیزیں جو ہیں یا شائع خورنوش، ان کی پرائس ہم دیکھتے ہیں کہ زمین آسمان کا فرق آتا ہے جب ہم گروسری کرتے ہیں۔ جو ادر سٹورز ہوتے ہیں وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا فرق دکھائی، کوالٹی کا بھی کیا کوئی فرق آتا ہے، یا ہمیں اب بہتر انتخاب کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنی جو کہتے ہیں نا کہ ترجیحات ہمیں بھی اپنی بدلنی پڑیں گی، صرف ہم حکومت کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بالکل نبیہ، لیکن ایک چیز جو آپ نے یہ آپ کی آبزرویشن ہے، یہ بالکل درست ہے کہ جن سٹورز پہ ہم جاتے ہیں فار شور وہ اپنے سارے جو ایکسپینسز ہیں ان کو کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں، ان کو کور کرنے کے لیے تھوڑا پرائسز، تھوڑا نہیں خاصا پرائسز کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جس طرح سبزیاں ہو گئیں یا یہ سب چیزیں ہو گئیں، وہ سب جو ہیں سٹورز پہ دھو کے رکھی ہوتی ہیں۔ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، بہرحال آج کیا بن رہا ہے؟ بالکل، آج نبیہ میں چیز پارسلز بنا رہی ہوں، اور چیز پارسلز انوار میں بڑا غور و فکر کر رہے تھے کہ چیز پارسلز کیا ہے؟ بالکل چیز پارسلز جو ہے وہ بن رہے ہیں، اور اس کے اندر فلنگ بڑے مزے کی ہے، اور فلنگ کے اندر چونکہ چیز ہے، اور پارسلز بالکل اس شیپ میں ہوں گے۔ یہ پارسل ہے جو میں آپ کو پارسل کروں گی۔ چیز کون سی لی آپ نے؟ میں نے کاٹیج چیز لی ہے، کاٹیج چیز
ये अच्छा, ये बड़ी महंगी चीज वैसे बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये चीज बड़ी महंगी चीज है ये चीज वाकई बहुत महंगी। और कॉटी चीज ली है, उसको क्यूब्स में काट के मैंने फिलिंग उसकी बना ली है। किस तरह से इसको पैक करना है, पार्सल किस तरह से करना है, बनाना किस तरह से, वो थोड़ा सा ट्रिकी है और पर इतना मुश्किल नामुमकिन नहीं है। लेकिन उसके साथ स्ट्रॉबेरी मेरी तो बहुत फेवरेट है जी, और आजकल बहुत मजे की मीठी मीठी सी आई हुई है। बिल्कुल, तो मैंने कहा आज अफ्तार में जो है दूध के साथ जो है शेक बना लेते हैं। जबरदस्त। और ये सब कुछ जो फ्राइंग होगी वो डालडा में फ्राइंग होने जा रही है। और जब भी डालडा का नाम आता है, ये रेसिपी चूंकि डालडा की है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जी ना बदला जमाना ना बदला डालडा, और जहाँ डालडा वहाँ ममता। और सबसे स्पेशल बात जो सार्फिन के लिए इस रमज़ान डालडा बहुत प्यारा तोहफा लेकर आया है, और वो है स्पेशल किस्म की उनकी जो पैकिंग रेंज आई है वो बहुत प्यारी है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है बाबरकत महीना शानदार बचत। और शानदार बचत के साथ साथ नबी आपको पता है कि डालडा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करता। दैट्स ग्रेट। तो हुमा, ये पार्सल्स आप बना के हमें पार्सल्स कीजिए, और इसकी फाइनल रेसिपी भी हम आपसे लेंगे। प्रोग्राम में बढ़ते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें, साथ रहिए। वेलकम बैक। आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे इस्लाम के अहम तरीन रुकन की, जो कि ज़कात है। कुरान करीम में भी ईमान के बाद नमाज और उसके साथ ही जो ज़कात का जिक्र किया गया है, ज़कात के जो लग़वी मायनी हैं वो पाक होने के हैं, बढ़ने के हैं और नशरमा पाने के हैं। ये हमारी माली इबादत है जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये महज नादारों की कफ़ालत और दौलत की तकसीम का एक मौजू तरीन अमल ही नहीं है, बल्कि ऐसी इबादत भी है जो कल्ब और रूह का जो मैल कुचैल है उसको भी साफ करती है। बिल्कुल। और नाज़रीन, इंसान को अल्लाह का ये मुखलिस बंदा बनाती है। ज़कात अल्लाह की अता की हुई बेहिसाब नेमतों के एतराफ़ और इसका शुक्र बजा लाने का एक बेहतरीन ज़रिया। चाहे हमें लग रहा होता है ना कि ये जो माल है, ये जो दौलत है, ये जो नेमतें हैं, मैं तो भाई अल्लाह का बड़ा नेक बंदा हूँ, मैं तो बड़ा पीर हूँ, फ़कीर हूँ, अल्लाह को बड़ा प्यारा हूँ, तो उसने मुझे इतनी सारी दौलत और इतनी सारी नेमत दी है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस दौलत में जो मुस्तहिक लोग हैं, जो आपके गरीब रिश्तेदार हैं, जो आपके आसपास नामहरूम लोग हैं, उनका कितना हिस्सा मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली अब हम इस तरह के हालात को फेस कर रहे हैं कि अनवार, जैसे ब्रेक से पहले भी जिक्र किया था कि जो ज़कात देना है, जो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि इस वक्त आम आदमी के लिए या ख़वातीन के लिए ज़कात देना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ज़कात से मुतल्लिक जितने भी सवालात हैं हम कोशिश करेंगे कि आज हम उनको कवर कर पाएँ। प्रोग्राम के इस हिस्से में अल्लामा अब्दुल शकूर हक्कानी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। अल्लामा साहब, जिस तरह से अभी अनवार ने जिक्र किया कि जो ज़कात है उसके मायनी है पाक करना, जैसे कि हम अपनी जान का सदका देते हैं, उसी तरह से हमारी माल का भी उसका भी सदका ज़कात की सूरत में वो तो जाना ही जाना है। तो मैं चाहूंगी थोड़ी सी रोशनी आप इस पर डालिएगा। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने मालदार को साहिब निसाब करार दिया कि एक आदमी वो होता है जो साहिब निसाब होता है। जब साहिब निसाब हो गया, अब उसके लिए साल में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक वो ज़कात अदा करे, और दूसरा वो फितराना अदा करे, और तीसरा ये है कि वो कुर्बानी करे। ये 3 चीज़ें उसके ज़िम्मे लाजमी हैं। इसके अलावा वो नफली सदका खैरात जो दे वो इजाफी है, जिसे हम नफल पढ़ते हैं, तीसरा नफली सदका खैरात होता है। अब रही ये बात कि साहिब निसाब कौन होता है, उसके लिए शरीयत ने या तो 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, ये 2 निसाब बताए हैं। इनमें से जो चीज़ सस्ती होगी उसका हिसाब लगाया जाएगा ताकि गरीबों का फ़ायदा हो। ठीक है, क्योंकि अगर आज 7.5 तोला सोने का हिसाब लगाएं तो वो तो चला जाएगा 15 लाख पे तकरीबन जी। तो 15 लाख वाला मालदार होगा तो बहुत कम लोग ज़कात निकालेंगे फिर तो जी। तो इसलिए 52.5 तोला चांदी की जो आजकल कीमत तकरीबन 1.25 लाख रुपया बन रही है, तो 1.25 लाख रुपया जिसके पास है वो साहिब निसाब है। ठीक है। अब ज़कात कब वाजिब होगी? इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये तयन करना पड़ेगा कि चांद की किस तारीख को मैं साहिब निसाब हुआ था। चांद की, ये जो जनवरी फरवरी है इसको शमसी निज़ाम कहते हैं, इसका हिसाब नहीं, कमरी का हिसाब होगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे पिछले साल 1 रमज़ान को मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं साहिब निसाब था। फिर मैं पूरा साल चलते चलते अगले रमज़ान तक आ गया,
जो ज़कात का निसाब था ना, मैं उससे नीचे नहीं गया। वो एक डेड लाइन है, ठीक है, उससे मैं नीचे नहीं गया, यानी हर वक्त 52.5 तोला चांदी की कीमत से मैं ऊपर ही रहा हूँ। ठीक है। अब जब वो तारीख आ जाएगी, मसलन यकम रमज़ान आ गई, उस तारीख को बैठ के मैंने हिसाब करना है। अब हिसाब में 4 चीज़ें होंगी। वो ये है कि मेरे पास सोना कितना है, चाहे वो आधा तोला ही हो, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू आज कितनी है, अगर मैं बेचने जाऊँ कितने का बिकेगा, वो मैंने लिख लिया। चांदी मेरे पास कितनी है, मार्केट वैल्यू क्या है, वो मैंने लिख ली। करेंसी मेरे पास कितनी मौजूद है, चाहे किसी भी शक्ल में हो, पैसों की शक्ल में हो, प्राइस बॉन्ड की शक्ल में हो, या बैंक में रखे हुए हों, बिल्कुल, और या कोई और करेंसी किसी मुल्क की खरीदी हुई हो, तो उसको पाकिस्तान की करेंसी में कन्वर्ट करके कितनी बनती है, वो सारे पैसे जिसका मैं मालिक बनता हूँ वो भी मैंने टोटल कर लिए। अब चौथी चीज़ आ जाती है कि मैंने कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट की नीयत से खरीदी हो। लाजमी नहीं कि बंदा बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है, बाद दफ़ा खातून खाना जो होती हैं वो छोटी छोटी चीज़ें भी खरीद लेती हैं। मसलन कोई हमसाई आई, उसने कहा मैंने मोबाइल बेचना है, तो कितने का बेचना है जी, मैंने 10,000 का बेचना है, तो उसने हिसाब लगा लिया कि 12-13 का है, चलो 2,000 मुनाफा ही आ जाएगा, इसको 10 दे देती हूँ, मार्केट बेचूंगी 12 का बिक जाएगा। अब वो उसने खरीद लिया इन्वेस्टमेंट की नीयत से, ऊपर से वो तारीख आ गई ज़कात वाली, अब उसको भी बीच में ऐड करना होगा। ठीक है। जो चीज़ भी आपने इन्वेस्टमेंट की नीयत से खरीदी है, उस दिन उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, रेट चाहे अप हो चाहे डाउन हो, उस दिन वैल्यू क्या है, ये 4 चीज़ें आपने टोटल करनी है। इसके बाद अगर आपके ज़िम्मे कर्ज है किसी का, तो वो इसमें से आपने माइनस कर देना है। अब जो अमाउंट बचेगी उस पर आपने ज़कात देनी है, और वो 2.5% होती है, यानी 2.5%, 2.5%, लाख के पीछे 2,500 रुपया। जी, ठीक है, ये है सारा हिसाब किताब। ठीक है। अब जो कुर्बानी है उसके लिए भी साहिब निसाब होना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए साल गुजरना ज़रूरी नहीं कि एक बंदा पूरा साल गरीब रहा, लेकिन कुर्बानी के दिनों में आके उसके बाद अचानक पैसे आ गए, मालदार हो गया, अब वो निसाब से ऊपर जब चला गया तो कुर्बानी उस पर वाजिब होगी। उन 3 दिनों में जब भी उसके पास पैसा इतना आ गया कि वो साहिब निसाब हुआ है, मिसाल के तौर पे पहले 50,000 का मालिक था, अचानक किसी ने उसको आगे लाख रुपए पकड़ा दिया, किसी कहीं से हिस्सा आ गया, जो भी आ गया, अब कुर्बानी की जो 3 दिन है उनमें किसी वक्त भी ये पैसे उसके आए और वो साहिब निसाब हुआ, उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई। ठीक है। तीसरी चीज फितराना है, तो फितराने के लिए भी साल गुजरना जरूरी नहीं। ईद वाले दिन फजर की नमाज से पहले पहले जो शख्स साहिब निसाब हो गया, ठीक है, फजर की नमाज से पहले पहले जो साहिब निसाब हो गया, अब साहिब निसाब में ये भी जरूरी नहीं कि यही चीजें हों, इसके अलावा जो जरूरियात जिंदगी से हट के चीजें हैं जी, मिसाल के तौर पे एक गरीब आदमी, हमें गरीब लगता है, लेकिन उसने एलसीडी लगाई है जो 50,000 की है, ये जरूरियात जिंदगी तो नहीं है। बिल्कुल। इसी तरह उसने डेकोरेशन पीस घर में बड़े कीमती रखे हुए हैं, वो जरूरियात जिंदगी में से नहीं है। या बहुत महंगे कपड़े रखे हुए हैं और कभी पहने भी नहीं, कभी साल बाद पहन लिए। 2 जोड़ों के अलावा अगर उसके पास ऐसे कपड़े हैं, उनकी मालियत भी लगाई जाएगी। अब अगर वो निसाब को पहुंच जाता है तो फितराना वो देगा, ज़कात नहीं उस पे होगी, लेकिन फितराना देगा। और ये जो साहिब निसाब हो जाएगा तो फितराना ले भी नहीं सकता, ये किसी और से ले नहीं सकता, बल्कि खुद अपना फितराना किसी और को देगा। अच्छा अलामा साहब, खवातीन की जानिब से चूंकि एक बहुत सवाल आता है, और जिस तरह से हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि हमारे यहाँ का जो जहेज का निज़ाम है या जो दिखावा है वो इतना ज़्यादा है कि माँ बाप सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि हम बेटी को जो भी देख सकते हैं, सोने के सेट भी होते हैं, दिखावा भी होता है उसमें, और ज़रूरत भी समझते हैं। अब जिस तरह से सोने की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, खामंदों ने भी हाथ उठा लिए हैं कि हम तो ज़कात नहीं दे सकते, लेकिन ऐसे में यही सुना पड़ा है कि कोई चीज़ बेचो चाहे उन सोने की अशिया में से, लेकिन ज़कात फ़र्ज है, और वो खातून पर है, शौहर पर नहीं है। जी जी बिल्कुल। जो मालिक होगा, ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई है ना, हर इंसान का अपना हिसाब होगा। बालिग हो, जो नाबालिग बच्चा, उस पर ज़कात नहीं। बालिग हो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, चाहे शादीशुदा हो चाहे कंवारा हो, हर एक का अपना हिसाब होगा। वो बैठ के 4 चीज़ों का हिसाब करेगा। अगर वो साहिब निसाब बनता है और अगले साल तक साहिब निसाब रहता है, उस डेडलाइन से नीचे नहीं आता, तो अब फिर वो बैठ के हिसाब करके अपनी ज़कात देगा। ठीक है। ऐसी सूरत में कि मिसाल के तौर पे बेगम के पास जेवर है, बहुत कुछ है, लेकिन ज़कात वो दे नहीं सकती, शोहर उसकी तरफ से अदा कर दे। लेकिन शौहर पे फर्ज होगा? नहीं, फर्ज बीवी पे है। ठीक है, बीवी पे फर्ज है, लेकिन शोहर अगर अदा कर देगा तो इसको एहसान है ना, अदा हो जाएगी, ये नहीं कि अदा नहीं होगी। और अगर शोहर भी इतना कमजोर है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं ज़कात नहीं दे सकता, मिसाल के तो 2 लाख ज़कात बन जाती है किसी की, अब वो शोहर कहता है मैं तो नहीं दे सकता,
अब बीवी कहते मैं भी नहीं दे सकती। अब जाहिर बात है उस जेवर में से कोई चीज बेचे, बेच के ज़कात अदा करे। ठीक है। और या कहीं से पैसे आने की उम्मीद है तो फिर यह है कि उस तारीख को हिसाब करके डायरी पे लिख ले कि इतनी मेरी ज़कात बनती है, और इंतजार करे पैसे आने का। जब पैसे आ जाएं उसमें ज़कात अदा कर दे। और इसमें यह भी आसानी है कि अगर एडवांस कोई ज़कात देना चाहता है, मिसाल के तौर पे मुझ पे 50,000 ज़कात बनती है, मैं सोचता हूँ कि मैं इकट्ठे तो निकाल नहीं सकता, छोटी सी मेरी दुकान है, मैं अगर निकाल लूं तो कैसे चलेगी, तो मैं एडवांस 2-2 हज़ार रुपये महीना देना शुरू कर दूं। एडवांस भी दे सकता हूं, ठीक है, और उसके बाद भी किस्तों पे दे सकता हूं। यानी आज मेरे पास ज़कात फर्ज हुई इतनी, तो मेरे पास इकट्ठे पैसे नहीं है, तो मैं हर साल खर्चे में से बचा के 2-3 हज़ार हर महीने ज़कात देता रहूं। तो किस्तों पे भी ज़कात दी जा सकती है, एडवांस भी दी जा सकती है, बाद में भी दी जा सकती है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। अब्दुल शकूर हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मजीद भी जानेंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से गुफ्तगू करेंगे ज़कात की अहमियत से मुतालिक। अब्दुल शकूर हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जानना मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे अगर किसी फ़र्द ने अपने घर के लिए प्लॉट लेकर रखा है और वो उसकी नीयत है कि उसके लिए घर बनाएगा, और उसके लिए भी बहुत अरसा गुजर जाता है, घर नहीं बना पा रहा, क्या उस पर भी ज़कात है? और एक और चीज़ कि अगर आप किसी को कर्ज देते हैं, वो कर्ज किसी भी अमाउंट का हो, वो लाखों में हो, हज़ारों में हो, लेकिन आपको अपने असासों में उसको ऐड करना है ज़कात देने के लिए, या फिर जब वो आपको वापस मिलते हैं, क्योंकि आजकल कर्जदार भी कर्ज वापस नहीं करते, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? पहला सवाल जो है उसका जवाब तो ये है कि जो प्लाट आपने अपनी रिहाइश की नीयत से खरीदा है उस पर ज़कात नहीं है। ठीक है, वो भले कितने साल ही गुजर जाए, उसकी अमाउंट चाहे करोड़ों में चली जाए, ठीक है, चूंकि आपने रिहाइश की नीयत से खरीदा है इसलिए उस पर ज़कात नहीं। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट की नीयत से खरीदा है तो फिर उस पर ज़कात होगी। ठीक है, वो हर साल उस तारीख को जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी उसके हिसाब से ज़कात होती रहेगी। फिर इसमें यह भी है कि अगर आपने प्लाट खरीद लिया इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है, और प्लाट का कब्जा भी आपको नहीं मिला, ठीक है, तो आपने जितनी अमाउंट दे दी है वो गोया आपकी उनके जिम्मे कर्ज चली गई, तो उसकी आपने ज़कात देनी है। ठीक है, और जो बाकी रहेगी और आपको कब्जा मिल गया अगर, तब बाकी आपके जिम्मे कर्ज है, तो जो टोटल अमाउंट बनेगी उसमें से जो आपने उनको देने हैं वो माइनस कर दें, बाकी की ज़कात होगी। इसी तरह जो कमेटियां डाली होती हैं, बोली वाली कमेटी तो जायज़ नहीं है, उसकी तो बात नहीं हम करेंगे। जो पर्ची वाली होती है उसको बाज़ दफ़ा मशवरे से भी नाम निकाल लेते हैं, बाद पर्चियां डाल लेते हैं, लेकिन सबको मिलती बराबर है। बोली वाली क्योंकि बराबर नहीं मिलती इसलिए वो नाजायज है। तो ये ऐसी कमेटी अगर आपकी निकल आई, आपने इस्तेमाल कर ली, तो वो तो उस अमाउंट में आ गई। अब जो बाकी कमेटियां हैं वो आपके जिम्मे कर्ज है, लिहाजा वो उसमें से माइनस हो जाएगा। और कमेटी आपने दी हैं मसलन 10,000 की 10 दे दी हैं, लाख चला गया लेकिन अभी निकली नहीं, तो ये लाख रुपया आपका लोगों के जिम्मे कर्ज है ना, लिहाजा इसकी ज़कात आप देंगे। इसी तरह जो अमाउंट आपने किसी को कर्ज दी हुई है तो आप मालिक हैं, जो मालिक होगा उसके जिम्मे है उसकी ज़कात देना। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन बन गई कि आपको अंदाजा कि पता नहीं मिलते हैं कि नहीं मिलते, फिर शरीयत इजाज़त देती है कि आप उसको बाउंड कर लें, लिख लें कि इस साल इतनी बनती थी, अगले साल इतनी बनती थी, यानी उस पैसे के ऊपर। ठीक है, जब वो मिल गए तो इकट्ठी अदा कर दें, ठीक है, और अगर नहीं मिले तो फिर वैसे माफ है। ठीक। अच्छा अलामत साहब, ये भी फरमाइएगा कि हमारी ज़कात के जो अवलीन हकदार हैं वो कौन लोग हैं? क्या गरीब माँ बाप या बहन भाइयों को भी ज़कात दी जा सकती है? हाँ, ज़कात देने के लिए 3 चीज़ें समझ लें कि अपने जो माँ बाप हैं, सगे माँ बाप जो होते हैं, माँ बाप, फिर इसके ऊपर नाना नानी दादा दादी, इनको ज़कात नहीं दे सकते। ठीक है, इसी तरह अपनी जो औलाद है, बेटा बेटी, फिर आगे उनकी औलाद जो है, पोते पोते नवासी नवासे, इनको ज़कात नहीं दे सकते। और तीसरा, शोहर अपनी बीवी को नहीं दे सकता, बीवी अपने शोहर को ज़कात नहीं दे सकती। इसके अलावा अपने बहन भाइयों को, चचा को, ताए को, मामू को, सबको दी जा सकती है जो मुस्तहिक हो। बस ये आपने कन्फर्म करना है कि मुस्तहिक हो, फिर उस ज़कात दें। फिर ज़कात देते हुए बताना ज़रूरी नहीं है, आपके दिल में नीयत हो कि मैं ज़कात दे रहा हूँ, अगर बगैर नीयत के देंगे अदा नहीं होगी। नीयत होगी ज़कात के पैसे हैं, लेकिन जिसको आप दे रहे हैं उसको बताना ज़रूरी नहीं कि ज़कात है, क्यों? उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, उसके लिए कोई बहाना भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा कि मेरा अजीज है, रिश्तेदार है, कमज़ोर है काफ़ी, तो आप गए, आपने कहा यार मैं बच्चों के लिए कपड़े लाने थे, चक्कर नहीं लगा बाजार का, ये 20,000 पकड़ो, अपने भी कपड़े ले आओ, बच्चों के कपड़े ले आओ। अब ज़ाहिर है वो खर्च करेंगे, उसको जैसे मर्जी कर लें, लेकिन उनके दिल में होगा कपड़ों के लिए दिए हैं, तो ये नहीं होगा कि ज़कात दी है।
बिल्कुल। इसी तरह ईदी भी कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ, ईदी कह सकते हैं। भरम रह जाता इसी तरह बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके रिजल्ट आए हैं, तो आपने खुशी खुशी जाकर माशाल्लाह बच्चे आपके बड़े अच्छे अगली क्लासों में प्रमोट हो गए हैं, तो मैं इनको इनाम देना चाहता हूँ, बिल्कुल। मैं फी बच्चा 5-5 हज़ार रुपये इनाम दे रहा हूँ, ये ले लो। यानी नीयत आपकी ज़कात नीयत की हो, होनी चाहिए। उसको बताना जरूरी नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अलामा साहब। हक्कानी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। अब जो डिश है न्यू पाकिस्तान के किचन में वो भी रेडी हो चुकी है, चीज़ पार्सल। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल अल्लाह रखिए। हाफिज। अल्लाह हाफिज।